Namaste, dear listeners. Welcome to this edition of Growing Steps. I am Tej. एंड आई एम हरलीन। आज हम एक खास टॉपिक पे डीप डाइव करने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के प्री स्कूल के लिए कैसे तैयार करें। शुरू करते हैं प्री स्कूल के कॉन्सेप्ट से. Why is it so important and what are the benefits? ग्रेट क्वेश्चन। सी इट्स नॉट जस्ट अबाउट एबीसीज, इट्स अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट। हियर kids learn social interaction, emotional skills, and foundational academic concepts. And it's where the kids have their first experience outside the family setup. First friends, first teachers, first tiny tips. Yes, it's their little universe. Can you elaborate more on differences between the home and school environments and how they shape up the child's perspective? Certainly, Tej, at home, the environment is usually tailored to the child's comfort. It's their safe space. Everything from toys to food is generally as per their preference. However, in a school, particularly in a preschool, it's the child's very first experience in a more democratic space. They are suddenly in an environment where they are among many, where the toys, the activities, and even the routine is not designed specifically for them, but for the collective benefit of all the children. Now, this shift from an individual centered to a group centered environment, this is very crucial. It makes them understand the importance of community, sharing, then waiting for their turn, and even coping up with the minor disappointments. That sounds challenging. Transitioning from a routine must be the very initial hurdle, right? Absolutely. See, in home environment, there's a flexibility. If a child wishes to play for 10 more minutes or eat little later, it's usually accommodated. But in school, routines are in place to ensure the smooth functioning of the day and to cater all the children equally. A fixed time for the snack, a certain time for activities. These routines help children develop a sense of time, then discipline, and even anticipation. See, consistency, which is important at this age, is again to be monitored. Remember the excitement of waiting for story time or playtime. It's there. Yeah. Oh, I do. And you mentioned emotional readiness earlier. So, can you Yeah. provide Yeah. some practical parents can take, some steps, practical steps which parents can take to ensure Okay. their child is emotionally prepared? Certainly. See, readiness in many ways is very important for the academic readiness. Some steps are there which parents can take. First, I can say they can visit to the school beforehand. Mm-hmm. Let the child get familiar to the environment, seeing his classroom, the play area, and even meeting the teacher. This can lessen the anxiety of the unknown, right? Great point. Then, secondly, they can read books. Mm-hmm. There are numerous children's books that revolve around the first day of the school. So, Gee. reading these can help normalize their experience of the school. Mm-hmm. Then, role playing, Mm-hmm. play pretend school at home, Mm-hmm. take turns being teacher and student. This will Wow. make Yeah. the idea of school fun and it will make the child familiar with the environment, That's right? nice. And apart from it, you can talk, discuss Mm-hmm. what they can expect, listen to their fears, and reassure them. I think communication is a successful key. Mm-hmm. Then, in addition to it, put them in a routine at home, which will be Mm-hmm. similar to the school routine. So, transition becomes easier for them, right?
Yeah. Also, in schools, they have new friends and classmates, right? So I think they also play a significant role in this phase. So, Yeah. how do early friendships really shape up the child's personality? Can you give your view about it? Yeah. These early friendship stage are foundational. See, Hmm. firstly, they teach the child about diversity. Their friend might come from a different cultural background. They have different food habits, or they celebrate different festivals. Yeah. This exposure, broadens their perspective. Yeah. Secondly, the friendships teach empathy and conflict resolution, skills that are important to develop one emotional intelligence. This Hmm. should be the first point, rather. Disagreements over a toy or a game are very common. But with the guidance of the educators and parents, children learn to resolve these conflicts, understand the importance of sharing, and even the joy of collaboration. See, teamwork is a dream work. We teach them turn wise. Abhi aapki turn hai, then dusre ki turn hai. So that makes it easier. Well, that seems to be very fundamental at a very early stage. So, why is it really so much emphasized about the teamwork and the routine as well, or the skills you mentioned at the preschool stage, right? Preschool is just should be pretty free for kids, isn't it? See, while academic skills provide a foundation for further learning, life Mm-hmm. skills are very essential for the holistic growth. Mm-hmm. Being able to manage the basic tasks independently boosts a child's confidence. Mm-hmm. Then imagine the pride of a child feels when they can wear their shoes by their own, the Yeah. sense of responsibility they experience when they're given a small classroom duty. These skills not only aid their daily life, but also instill a sense of self worth and capability. Wow. So, and lastly, also, that's great point. And lastly, maybe also the role of educators at the preschool level Yeah, or yeah, educators, including parents, in fact, right? So, how do parents very ensure true. they're collaborating well with teachers during this transition phase? See, a parent teacher partnership is invaluable. Mm-hmm. Here's how they can foster it. Like, firstly, they should have regular communication, Mm-hmm. regular check in with the teacher about the child's progress, the Gee. behavior, and any concern. It can be Uh-huh. food or some other habits. Mm-hmm. Then be open about it. Mm-hmm. If there are changes at home, like you have a new sibling or a shift in the residence, let the teacher know. Such changes can impact a child's behavior at school. Then another thing is participation. Mm-hmm. Whenever there are school events or parents teacher meetings, ensure the participation. It Mm-hmm. shows the child that their school life is important to you, right? Mm-hmm. Well, that's a lot more than just buying books and supplies for the school, right? Indeed, Tej, it's about preparing a journey, one filled with growth, discoveries, and invaluable experiences. Well, that's great information or initial information about the preschools. Thank you. Secondly, I believe that there's also importance of building a routine. So one of the major Yeah, transition, as you mentioned, is difference true, true, between the true. home and the school environment is school environment has a routine and home is very flexible. So Yeah. to a structured routine. So this transition, what are your thoughts about it, or about the See, building the you're routine? Why is very, it so important? yeah, you're right. See, consistent bedtime, then mealtime, Mm-hmm. playtime, they Mm-hmm. all play a very important role. And Mm-hmm. it's just not about the child. Parents also need to adjust to their routine and support Yeah. the child. Yeah. Okay, once you are a mother or a parent, you need to adjust the time. बच्चों के लिए प्री स्कूल का पहला दिन एक बहुत बड़ा दिन होता है. इस Gee. ट्रांजिशन को आसान बनाने के लिए उनका रूटीन तैयार करना बहुत ही जरूरी काम है. Gee.
सही कहा आपने। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से, लाइक बच्चों के लिए एक रूटीन क्यों ज़रूरी होती है? जरूर। व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? या राइट, तेज यंग चिल्ड्रन दे थ्राइव ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी। जी, रूटीन उन्हें एक सिक्योर फीलिंग देता है कि ओके। अभी ये होना है। जब हुँ, बच्चा हुँ। जानता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, तो वो एंजाइटी या डर जो है वो थोड़ा कम लगता है। तो कम इससे फ़ील उनका करते कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हैं। कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है उससे। मेक सेंस। तो पेरेंट्स को कैसे शुरुआत करनी चाहिए एक रूटीन की या इस रूटीन बिल्डिंग हैबिट की? देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्री स्कूल का दिन कैसा होता है। जी, उसके बाद वही पैटर्न को घर पे फॉलो किया जाए। ओके। जैसे कि एक फिक्स टाइम पे उठना, खाना, प्ले टाइम, स्टोरी हुँ, हुँ। टाइम, सोना, हुँ। हर चीज एक टाइम शेड्यूल पे हो, तो दैट विल मेक द चाइल्ड बेटर इक्विप्ड विद द स्कूल। कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो अपने बच्चे का रूटीन सेट कर रहे हैं? हाँ, जरूर। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी। जी, हर बच्चा अलग है। कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ देर से उठते हैं, तो रूटीन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जी, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। ठीक है। जी। दूसरा, एक्टिविटी की ड्यूरेशन। अब हाँ, हाँ। छोटे बच्चे का अटेंशन स्पैम बहुत कम होता है, बहुत जी, थोड़े स्पैन के लिए वो एक चीज पे फिक्स होते हैं। तो एक्टिविटीज शॉर्ट होनी चाहिए और उसको एंगेज रखना पड़ेगा। जी। इसके बाद ब्रेक्स। हाँ, बच्चों को हाँ। बीच में ब्रेक्स की जरूरत होती है। हाँ, कुछ हाँ। मिनट का ब्रेक लेकर फिर नेक्स्ट एक्टिविटीज को मूव करना, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं जो जनरली इस रूटीन में हम इंक्लूड कर सकते हैं या अब उनकी हाँ, डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं रूटीन बनाने के लिए? जरूर। जैसे फिजिकल प्ले, इस जी। पे जैसे पार्क ले जाओ, या घर में ही डांस वगैरह कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए। हाँ, हाँ। देन उनका कोई क्रिएटिव टाइम हो, जैसे जी। ड्राइंग, पेंटिंग या कोई आर्ट क्राफ्ट का कुछ काम। हाँ, हाँ। देन स्टोरी टाइम, जी। जैसे कि स्टोरी सुनना, हाँ, हाँ। या फिर सेल्फ प्ले हो। हाँ, तो हाँ। इसके अलावा लर्निंग टाइम, बेसिक अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, या कोई शेप्स को इंट्रोड्यूस कर लेना, ऐसा कुछ। अक्सर बच्चा रूटीन फ़ॉलो नहीं करता, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखो, इसके लिए प्रेशर मत डालो। जी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रूटीन बन जाएगा। ओके। जैसे ही रूटीन इंट्रोड्यूस करोगे, कुछ दिनों में रेजिस्टेंस आएगा, हाँ, हाँ। लेकिन कंसिस्टेंट रहने से इवेंचुअली वो रूटीन में सेटल हो जाएगा। ग्रेट, आई थिंक ये बहुत ही अच्छे इनसाइट्स से एक रूटीन सेट करने के लिए। आपने और भी टॉपिक्स पे बात करी प्री स्कूल में, जैसे इमोशनल प्रिपरेशन, बच्चे को इमोशनली प्रिपेयर करना, राइट? हम्म, तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, अगर इस पे हम थोड़ी बात कर सकें कि जो हर पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चे को इमोशनली कैसे तैयार करें प्री स्कूल के लिए। तो इस पे थोड़ा अगर हम डीप डाइव करें तो कुछ अपने थॉट्स इसके बारे में बताइए। ठीक, तेज, दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जी, प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड इमोशनली, ठीक है। ओके। द एंजाइटी ऑफ सेपरेशन, then new faces, then new हाँ, environment, it can be जी, overwhelming, बिल्कुल। right? प्री स्कूल की शुरुआत एक नई यात्रा होती है बच्चों के लिए, और ये यात्रा के लिए उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ता है। ठीक है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मतलब इमोशनल प्रिपरेशन, इसका मीनिंग क्या है पेरेंट के लिए? मतलब कैसे उनको इमोशनली प्रिपेयर करें? सी, इमोशनल प्रिपरेशन का मतलब है कि बच्चे को इमोशनली समझाना और जी। समर्थन देना, हाँ, जिससे हाँ। वो नए चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस को फेस कर सके, बिना डर के, बिना किसी एंजाइटी के। तो दिस इज इमोशनल प्रिपरेशन। अ, तो इसके बारे में थोड़ा और बताएँ कि हम कहाँ से इमोशनल प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल। सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिकग्निशन। जी। बच्चे की फीलिंग को रिकग्नाइज करना और उन्हें हाँ, हाँ। वैलिडेट करना।
हाँ। अगर बच्चा कहता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता तो उसकी जी। फीलिंग को समझने की कोशिश करो, ओके। उसे बोलें कि ऐसा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, और फिर पूछें कि वो ऐसा फील क्यों कर रहा है। जी। और क्या कर सकते हैं? ये तो हो गया कि हाँ। इनिशियल रिकॉग्निशन या एक्नॉलेज करना बच्चे की बात को। हाँ, क्या उसके बाद और है क्या बेहतर कर सकते कम्युनिकेशन। हैं हम? ओके। हाँ, उसके बाद कम्युनिकेशन, देन बच्चे से रेगुलरली बात करें, उन्हें जी। स्कूल के बारे में स्टोरीज सुनना उनसे, उनके जी। डर और कंसर्न को एड्रेस करना, तो ओके। दिस कैन हेल्प। उससे क्या फायदा होगा? जैसे सी बच्चे के साथ कम्युनिकेशन से बच्चा जी। समझता है हाँ, हाँ। कि उसकी फीलिंग्स मैटर कर रही हैं, ओके। इससे वो ओपन अप करता है और अपनी फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस करता है, जिससे पेरेंट को भी पता चलता है कि बच्चा किस तरह का सपोर्ट चाह रहा है। वाओ! तो क्या इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं बच्चे को इमोशनली प्रिपेयर हाँ। करने के? हाँ, तेज जैसे कि एक्सपोजर, जी। बच्चे को पहले से ही स्कूल के एनवायरनमेंट से फेमिलियर करवा दो, हाँ, स्कूल हाँ। के प्ले एरियाज, क्लासरूम, टीचर से मिलवाना, राइट। वाओ! और वाओ! मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो प्री स्कूल के पहले दिन के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो हाँ, हाँ। बच्चे को वो पढ़कर सुनाना और हेल्प देम टू विजुअलाइज एंड नॉर्मलाइज द एक्सपीरियंस। जी। ठीक है। फिर इसके अलावा रोल प्लेइंग, हाँ, हाँ। घर में प्रिटेंड करो जैसे कि स्कूल स्कूल खेल रहे हैं, इससे जी। बच्चा गेट्स अ फील ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड becomes more of a fun activity, right? या। Then building independence, हाँ, हाँ। छोटी छोटी चीजें जैसे कि खुद से शूज पहनना या बैग पैक करना, इन चीजों से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है और एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है। वेरी गुड पॉइंट्स, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बच्चे स्टिल फील करते हैं, या तो रेजिस्ट रेजिस्ट। करेंगे या उनको डर रहेगा, राइट? तो उस ये हाँ, उसका क्या कर सकते हैं? मतलब हाउ शुड वी देखो ये हैंडल नेचुरल है। दैट? ओके। हाँ, दिस इज वेरी नेचुरल, हर बच्चा अपनी स्पीड पर एडजस्ट करता है, कुछ जी। बच्चे जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं तो कुछ ज्यादा टाइम लेते हैं, तो हम्म। पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस सपोर्ट देना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से कुछ होता है, इट्स नॉट जी। पॉसिबल। जी। तो हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट जल्दी ना करें, जनरली बच्चे हाँ। एडजस्ट करने को टाइम लेते हैं। कुछ और टिप्स दे सकते हैं इस पे, जैसे हाँ, जो पेरेंट्स को समझने चाहिए कि इससे जरूर। बच्चा ज़रूर सीखेगा या बेटर हो सकता है? जरूर तेज, जैसे कि स्टे पॉजिटिव, सबसे पहले जी। तो अपनी फीलिंग्स और अप्रोच को पॉजिटिव रखो। अगर हम्म। पेरेंट्स एक्साइटेड होंगे तो वो एक्साइटमेंट बच्चे तक पहुंचेगी, हाँ, हाँ। राइट। देन क्रिएट अ गुड बाय रिचुअल, हर दिन एक स्पेसिफिक वे में गुड बाय कहना, जैसे कि हक कर देना, किस करना, तो दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चे को। जी। देन स्टे कनेक्टेड, बच्चे को रीअश्योरेंस देनी कि पेरेंट्स आर जस्ट अ कॉल अवे, कुछ स्कूल्स अलाउ कर देते हैं पेरेंट्स को कॉल करना, चेक इन, तो विच कैन बी comforting फॉर द चाइल्ड, हम्म। तो समथिंग ऑफ द सॉर्ट। Well, that's very valuable information, and I would say it's a gold mine of information. Thank you so much to you. ओह, द प्लेजर्स ऑल माइन तेज। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा खुश रहे और थोड़ा प्रिपरेशन से वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथली हो जाती है। या आई थिंक हमने बात करी रोल प्लेइंग की, टॉकिंग पॉजिटिवली की, यस। स्कूल रीडिंग, रीडिंग बुक्स अबाउट द स्कूल दैट कैन हेल्प, एंड ऑलवेज वैलिडेट their feelings, very डेफिनेटली। very important, right? They're scared and anxious. It's really real for a child. बच्चे के लिए तो वही या सच है, right? या तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट देयर क्लासमेट्स या स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में, या उनकी इस लेवल पे, प्री स्कूल लेवल पे फ्रेंडशिप के बारे में। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उन चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है? सी, जो क्लासमेट्स हैं, दे कैन चेंज द गेम, दे आर गेम चेंजर्स।
जी। Even knowing a single child on the first day makes a huge difference. हाँ, हाँ। It provides a sense of familiarity and comfort. And yes, it always offers parents a chance to connect and share experiences. तो हाँ, हाँ। बच्चों के लिए ये क्लासमेट्स और फ्रेंडशिप उनके डेवलप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. मैं खुश Mhm. हूं कि हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. Nice. Thank you. I think those questions I felt that were definitely relevant for this discussion. तो इम्पोर्टेंस क्या है प्ले डेट्स की या क्लासमेट्स की या यू नो एट अ प्री स्कूल एज लेवल व्हाट डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इट? सी ये क्लासमेट्स जो है ना इनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. पहली जी। बार वो घर के बाहर एक अलग एनवायरनमेंट में दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हम्म। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है जहां वो सीखते हैं शेयर करना, वेट करना और दूसरों के साथ खेलना. जी। और आप तो जानते हैं कि सोशल लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल सही। ये तो आजकल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत. तो और फ्रेंडशिप क्या प्री स्कूल एज में फ्रेंडशिप होती है? अगर होती है तो कैसी होती है? सी शुरुआत में बच्चे पैरेलल प्ले करते हैं, मतलब वो जी। एक दूसरे के साथ खेलते जरूर हैं पर अपना अपना. ओके। ठीक है. तो धीरे धीरे एज दे बिकम मोर कंफर्टेबल उनकी फ्रेंडशिप में डेप्थ आती है. जी। वो एक दूसरे को जानने लगते हैं, हाँ, हाँ। प्रेफरेंसेस शेयर करते हैं और समटाइम्स इवन दे हैव लिटिल सीक्रेट्स. ओह दैट्स अडोरेबल। तो हाउ कैन पेरेंट्स इंश्योर कि उनका बच्चा क्लासमेट्स के साथ फ्रेंडशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है? नॉट एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेट्स, राइट? सो यस. तो ये हमें थोड़ा इनिशिएट करना पड़ता है, पेरेंट्स को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. जी। जो उनके घर के आसपास कोई किड्स हैं तो उनके साथ पहले से प्ले डेट्स को सेटल करना ताकि हाँ, हाँ। बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले इंटरेक्ट करने के लिए. ठीक है. जी। इसके अलावा एक मॉडल बिहेवियर जैसे घर में पेरेंट्स को डेमोस्ट्रेट करना चाहिए, शेयर करते हैं, कैसे अपोलोजाइज करते हैं, बच्चे ओह! सीखते हैं देखकर. जी। ठीक है. दे लर्न मोर बाय लुकिंग एट देयर पेरेंट्स. तो हाँ, हाँ। फिर ओपन कम्युनिकेशन होना, बच्चे से हुँ। रेगुलर बेसिस पे बात करना, उनके फ्रेंड्स, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बातचीत करना. तो दिस हेल्प्स. और सम किड्स आर रियली शाय, राइट? तो कई बार वो दूसरे बच्चों के साथ वो नहीं खेलना नहीं चाहते। खेलते. सी हर बच्चा अलग होता है तेज. कुछ बच्चे नेचुरली आउटगोइंग होते हैं और कुछ बहुत रिजर्व होते हैं. जी। तो आई थिंक वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेस. हुँ, हुँ। फोर्स नहीं करना चाहिए. लेट देम टेक देयर ओन टाइम. तो इवन वी शुड एनकरेज स्मॉल ग्रुप्स फर्स्ट. हाँ, बड़े हाँ। ग्रुप से पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में वो प्ले डेट्स रखनी चाहिए जिससे बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए. हुँ, हुँ। इसके बाद उसकी टीचर से बात करना, टॉक टू द टीचर. प्री स्कूल के टीचर को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, बहुत बच्चों का नॉलेज होता है, तो उनकी गाइडेंस लेने से भी पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी. हुँ। अ, लेकिन हरलीन कुछ बच्चे या कुछ पेरेंट्स डर जाते हैं कि उनका बच्चा किसी कॉन्फ्लिक्ट में हाँ, आ जाए। तो हाँ, ऐसे में क्या करना तो चाहिए? हो जाता है. सी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत नेचुरल हैं तेज. बच्चों के लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. तो जी। कॉन्फ्लिक्ट्स डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज हाउ द चाइल्ड लर्न्स टू रिजॉल्व इट इवेंचुअली. हाँ, हाँ। तो यू शुड स्टे काम. ओवर रिएक्ट मत करो. बच्चों को जी। कामली सिचुएशन एक्सप्लेन करनी चाहिए. हुँ, हुँ। फिर जो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये सिखाओ. सिचुएशन हुँ, को हुँ। एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना. बच्चे को सिखाया जाए कि कैसे हैंडल किया जाता है सिचुएशन को. इसके अलावा गुड बिहेवियर रीइंफोर्स करना. जब बच्चे शेयर करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं तो उसकी प्रेज करो. यू मस्ट से दैट यू डन रियली गुड. नाइस। तो हाउ इज़ फ्रेंडशिप इन दिस एज? क्या दोस्ती इस एज पे स्टेबल होती है या प्रीस्कूल से ही लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो सकती है?
प्री स्कूल में जो फ्रेंडशिप है ना वो बड़ी फ्लूइड होती है। जी, आज का बेस्ट फ्रेंड कल कोई और हो सकता है, लेकिन जी, हाँ, फ्रेंडशिप्स डीपन होती हैं और लॉन्ग टर्म बन जाती हैं। हर बच्चे का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। कांट कमेंट। जी। कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे फ्रेंडशिप के ऊपर ड्यूरिंग दिस प्री स्कूल एज? Yeah, I can, like, you should stay involved. रेगुलरली चेक इन करें कि आपका बच्चा किसके साथ है, कैसे, जी, कंफर्ट लेवल क्या है। तो जी। दूसरा, उसकी एनकरेज करो ओपननेस, इंश्योर हाँ, हाँ। करें कि बच्चा अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। जी। इसके अलावा टीच देम एम्पैथी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे को सिखाना, दूसरे की फीलिंग को समझना और फिर रिस्पेक्ट भी करना, Well, thank you है ना? very much. I think we had a very good discussion on this particular topic of friendship within the school. You also talked about emotional intelligence and preschool importance. But Yes, preschool or any school is primarily for skill development, right? तो स्किल डेवलपमेंट एक मेन एस्पेक्ट्स है जिसके लिए बिल्कुल। समझा जाता है कि बच्चे को प्री स्कूल में डालना चाहिए। ऐसा अब तक हमने डिस्कस किया। तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में कुछ अपने विचार बताएं और लेट्स डेवल्व इनटू इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट एट द प्री ओके। स्कूल लेवल। See, of course, ये preschool is not just about academics. जी, Children need to develop life skills like using the restroom independently, जी, zipping their jackets, even जी। sharing. ऐसे skills जो हैं, they don't just aid their daily task, but हम्म। boost their confidence as well and make them ओके। more independent. हम्म। तो स्पेशली ड्यूरिंग द प्री स्कूल एज बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है, और मुझे बहुत खुशी है कि वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक, राइट? Yeah, and what is the importance of, although everybody knows, you kind of just summarized it, but at a deeper level, what is the importance of skill development at this age, right? It might have राइट। difference important at different ages, but at the preschool age, why is it so important? इम्पोर्टेंस इसलिए है ना तेज के ये एज वो समय है जब बच्चे का ब्रेन का मैक्सिमम ग्रोथ होता है। G. उन्हें नए स्किल सीखने को मिलते हैं, जैसे कि मोटर स्किल्स हो गए, कॉग्निटिव Uh-huh. स्किल्स हो गए, सोशल स्किल्स हो गए। ये स्किल्स उन्हें स्कूल के नेक्स्ट लेवल और लाइफ के चैलेंजेस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करता है। तो स्किल्स Well, आर nice. इम्पोर्टेंट। But your motor skills, how can you define motor skills? What are these? हाँ, हाँ। सी, मोटर स्किल्स भी आप दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे G. कि ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो Uh-huh. ये जो है ये इन्वॉल्व करते हैं बड़े मसल ग्रुप्स, जैसे कि Uh-huh. चलना, दौड़ना, G. G. कूदना, राइट? और जो Uh-huh. फाइन मोटर स्किल्स हैं ये छोटे मसल एक्शंस हैं, जैसे कि बटन लगाना, Uh-huh. लिखना, Uh-huh. खिलौने के छोटे छोटे पीसेस को फिट इन करना, तो फाइन मोटर स्किल्स। Well, एक प्री स्कूल चाइल्ड के लिए ये फाइन मोटर स्किल्स तो बहुत ही डिफिकल्ट होते होंगे, बट यू नो हाउ कैन वी डेवलप दीज, और उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन हाँ, मोटर स्किल्स को? ट्रू। तो घर में जैसे एक्टिविटीज हैं, डांस कर लो, प्लेइंग कैच, जी। या कोई पजल सॉल्विंग कुछ हो जाए, तो ऐसी स्किल्स को डेवलप किया जाए। आउटडोर प्ले हो गया, प्लेग्राउंड में जाना जहाँ बच्चे कोई स्विंग, स्लाइड, सीसॉ वगैरह पे खेल सकते हैं। तो Uh-huh. देन इसके अलावा आप क्राफ्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि जी। पेंटिंग, ड्राइंग या अदर क्राफ्ट जो हेल्प करता है फाइन मोटर की डेवलपमेंट में। तो ऐसी Uh-huh. एक्टिविटीज घर में बहुत इजीली हो सकती है। So you also talked about cognitive skills, right? So what are these? See, cognitive skills are, they are just related to thinking, Mm-hmm. learning, then Mm-hmm. problem solving, Mm-hmm. memory। तो ये Uh-huh. सारी स्किल्स इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग,
logical thinking. जी. You can understand the concept, the cause, the effect Mhm. related to it. So how can parents really build up these skills in their child? See, parents can help by reading, बच्चों को Mhm. रेगुलरली स्टोरी सुनाना, उन्हें Mhm. एंगेज करना, फिर उस जी. स्टोरी को डिस्कस करना. Okay. देन अपार्ट फ्रॉम इट गेम्स हो गई, Uh-huh. बोर्ड गेम्स जैसे मेमोरी और पजल्स, दे कैन Mhm. एनहांस द स्किल, आर्ट, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग. देन अपार्ट फ्रॉम इट डे टू डे टास्क, सिंपल टास्क जैसे ग्रोसरी सॉर्ट करना या घर के कुछ कोर्स हो गए में हेल्प करना, दे कैन टीच देम सॉर्टिंग, काउंटिंग, Mhm. डिसीजन मेकिंग, सो एवरीथिंग. तो बच्चों से काम कराना चाहिए घर का. बिल्कुल बिल्कुल, मस्ट That's इन्वॉल्व nice. देम. Right. And you also talked about social skills. Although we understand social skills in an adult age, how they help us now with the social media so prevalent. But at this stage, for the kids in preschool, तो बच्चों को सोशल स्किल्स कैसे सिखाएं? उनके लिए सोशल स्किल्स की डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग क्या है? Okay. See, social skills are about interacting with others. ये हम्म. include करता है sharing, जी. understanding emotions, building relationships. तो हम्म. जैसे हमने बात की पहले भी प्ले डेट्स, जैसे हमने जी. एपिसोड में डिस्कस किया था कि दिस जी. इज अ ग्रेट वे टू टीच शेयरिंग एंड इंटरेक्शन. हम्म. ठीक है. देन मॉडलिंग की बात की, पेरेंट्स शुड मॉडल गुड बिहेवियर, बच्चे देख कर सीखते हैं. जी. Then open communication, discuss the feelings, understand why someone might be upset, and हम्म. learning to apologize are key components. हम्म. Right? Well, that's a very good discussion again, and I would say कि further on this topic, maybe we should talk more about पेरेंट्स का रोल क्या है और उनकी सपोर्ट कहाँ कहाँ चाहिए होती है. तो बिकॉज बच्चों के लिए ये एक बिग ट्रांजिशन है, राइट? इट्स अ बिग जर्नी फॉर बिल्कुल देम एंड इट्स बिल्कुल रियलिटी फॉर देम, राइट? सो बिल्कुल. हाउ कैन पेरेंट्स बेस्ट सपोर्ट देयर चाइल्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन? सीतेज बच्चे के लिए है तो पेरेंट के लिए भी ये बड़ा क्रूशल रोल है. जी. It's also something new for them. ट्रू. Firstly, they must acknowledge their feeling. हाँ. Sharing the caregiving role with teachers can be really impressive. But it's essential to trust the educators and maintain open communication. शक जी. करना नहीं चाहिए कि ऐसे होगा. This understanding and collaboration benefit the child in number of ways. हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी तरह से ग्रो करे. प्री स्कूल एज इज अ क्रिटिकल टाइम, और पेरेंट्स का यो रोल जो है वो तो पिवटल रोल है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम लोग नॉर्मली सोच लेते हैं कि कोई भी प्री स्कूल का टीचर मेरे बच्चे पे ज़्यादा ध्यान कैसे देगा, राइट? एंड वी थिंक अबाउट दोज थिंग्स. सो वी शुड, व्हाट यू आर वेरी सेइंग इज एट द बिगनिंग वी शुड ट्रस्ट देम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रू. हाँ. राइट? सो देखो, हाँ, पेरेंट्स का तेज ये देखो स्पेशल रोल. शुरुआत, जी. जब शुरुआत होती है ना तो ट्रस्ट बिल्डिंग से ही होती है. जी. जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके पेरेंट्स का रोल शुरू से ही हो जाता है. इनिशियल जी. ईयर्स में ये बॉन्ड और ट्रस्ट बिल्ड होता है जो प्री स्कूल में ट्रांजिशन को इजियर बना देता है. राइट? जी. तो ट्रस्ट इज एंड असेंशियल. so why is it so important to deliberately work on this and build trust with the child? देखो, कई चीजें इस पे डिवेल्प डिपेंड करती हैं. जैसे इमोशनल सिक्योरिटी, जब बच्चा जी. फील करता है कि उस पे ट्रस्ट किया जा रहा है, वो इमोशनली सिक्योर फील करता है. जी. फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट इंश्योर कि बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे. ये Uh-huh. ट्रस्ट उन्हें हेल्प करता है नए चैलेंजेस को फेस करने में. ठीक Mhm. है. फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, जब ट्रस्ट होगा तो बच्चा जो है वो दैट चाइल्ड विल फील मोर इक्विप्ड टू टैकल द प्रॉब्लम्स, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स उनकी साइड पे हैं. तो दिस हेल्प्स. बट ट्रस्ट इज मस्ट. हलीन, ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट ही ट्रस्ट बिल्ड करता है, राइट? ऐसा नहीं होता क्या? आई कैन से आइडली यस, लेकिन जी. ट्रस्ट बिल्ड करना जस्ट सेइंग आई ट्रस्ट यू से नहीं होता.
जी। ये है एक ऑन गोइंग प्रोसेस जो फील करना पड़ता है, वेयर पेरेंट्स नीड टू शो, उनके एक्शन से शो होना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग से, उनकी पेशेंस से। तो दिस हैज टू बी कंसिस्टेंट and available to all kids. This behavior should be visible, तो not in words. सो एज यू सेड अदर देन आई ट्रस्ट यू कहने से नहीं होता, तो क्या एक्शंस हैं जो पेरेंट्स करें जिससे चाइल्ड का ट्रस्ट डेवलप हो? हाँ, कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे रूटीन सेटअप, बच्चों के लिए जी। एक रूटीन एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड टाइम, डिसिप्लिन और हम्म, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है ये बात, है ना? जी। फिर एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना, अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एट होम, जहाँ बच्चा फ़ील करता है कि वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है जी। विदाउट फियर, जजमेंट या पनिशमेंट कुछ भी के बिना। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। Then there should be open conversations. Parents should encourage कि वो चाहे जो भी उसके स्कूल के एक्सपीरियंसेस हों या फीलिंग, बच्चे को बोलने की स्पेस दो, समझो उसकी बात को सुनो। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that's at home, right? But do you think parents should actively participate, or how can they participate? They should participate in the preschool as well. एब्सोल्युटली तेज, सी दे शुड स्टे इन्वॉल्व विद द स्कूल। Mm-hmm. पेरेंट्स को रेगुलरली टीचर को मीट करना, अंडरस्टैंड द करिकुलम जी। और एक्टिवली स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, इट्स वेरी एसेंशियल। Mm-hmm. अपार्ट फ्रॉम इट, सी द फीडबैक लूप, एक ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स। जी। इससे पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे का प्रोग्रेस और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कि वो क्या कर रहा है। Mm-hmm. देन होम लर्निंग, घर पे पेरेंट्स का सपोर्ट, व्हाट द चाइल्ड इज लर्निंग इन द स्कूल थ्रू एक्टिविटीज, बुक्स और गेम्स, दे मस्ट नो एंड रिपीट द थिंग्स एट होम। तो हरलीन जी, इन समरी थोड़ा बताएं कि पेरेंट्स का रोल क्या होता है प्रीस्कूल ईयर्स में? Tej, in summary, parents are pillars for their children. Their जी। role is to provide a safe environment, emotional support, and the right tool and opportunities for growth. हर पेरेंट का अप्रोच अलग होता है, लेकिन गोल वही होता है, टू सी देयर चाइल्ड थ्राइव। तो आई थिंक इट्स इक्वल फॉर ऑल। वेल दैट्स वंडरफुल। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स पे हमने बात करी इस पूरी डिस्कशन में। तो अगर कंक्लूड करना चाहें कि हर एस्पेक्ट से प्री स्कूल की प्रिपरेशन को हमने डिस्कस किया, राइट? तो हलीन, दिस हैज़ बीन सो इन्फॉर्मेटिव। लेट्स डू अ काइंड ऑफ रीकैप। हम शुरू करते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग द प्री स्कूल गेस्ट। So could you please summarize that for our listeners के अंडरस्टैंडिंग द प्री स्कूल में हमने क्या डिस्कस किया था? यस ऑफ कोर्स तेज, अंडरस्टैंडिंग प्री स्कूल में हमने प्री स्कूल की बेसिक डेफिनेशन, उसकी जी। इम्पोर्टेंस डिस्कस की। प्री जी। स्कूल इज अ चाइल्ड्स फर्स्ट स्टेप इनटू द एजुकेशनल वर्ल्ड, जहाँ उन्हें एकेडमिक कंसेप्ट्स के अलावा सोशल स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप करना होता है। तो इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर देयर फ्यूचर लर्निंग। जी, और उसके बाद फिर हमने बात करी थी बिल्डिंग अ चाइल्ड्स रूटीन ड्यूरिंग द प्री स्कूल। इसके बारे में कोई हाँ, हाइलाइट्स आपकी? routine is crucial. It provides a sense of security, readies the child for school structure, जी। consistency in daily activities, जैसे सुबह उठना, meals, bedtime can greatly ease the preschool transition, right? Right, definitely. And then we also talked about जैसे इमोशनल प्रेपरेशन के बारे में। So can you summarize that for Emotional, us? yeah. Emotional readiness is a key. Children should be prepared to handle separations, Mm-hmm. new experiences, new environments. Then parents, they play a pivotal role by validating their child's feelings, communicating effectively, and using, I told earlier also, tools like stories to discuss their emotions. Yeah.
that can be included. Very insightful. And then we also discussed about play dates and classmates and friendships, right? Yes. Playdates act as an intro to the school social interaction. Yeah. It helps the child in learning crucial skills like sharing, empathy. Then, friendships during preschools are foundational steps for long term social growth. Yes, definitely. And then the main purpose of the school, skill development, right? So Yeah, we talked about that as skills. well. Yeah, skills we spoke about, like motor, cognitive, social. They said the earlier educational groundwork. Then engaging activities, reading, play, and parental guidance all contribute to this phase of development. या और फाइनली हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट इन दिस राइट तो पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट Nothing. रोल दे आर आवर हीरोज राइट फॉर ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड व्हाट अबाउट दैट Definitely, Tej, definitely nothing without parents. Nothing without them. Parents are the unsung heroes, I must say. Their role spans their building trust, setting routines, fostering conducive home environment, staying यस actively involved with the school activities, to even seeking professional help when required. So they are doing endless work. absolutely. And what a journey. It's a very insightful discussion. Thank you so much for your time, Harleen. And any Thank concluding you. words for our viewers? Tej, every child's journey is unique. You cannot compare. The guidelines and suggestions we discussed can be tailored as per individual needs. Yeah, Then, parents, trust your instincts and remember you are your child's first teacher and biggest supporter and the absolutely. secure base for them, right? Awesome, So, awesome. nothing beyond you. To parents, you are the first teacher for your child. Thank you very much, Sharleen ji. And dear listeners, आपका प्यार हमें ऐसे ही drive करता रहेगा to keep delivering the podcast like this. Comment करिए, share करिए, comment में बताइए और किस topic पे आप podcast सुनना चाहेंगे. And I'll try to bring the relevant guests to my podcast. Thank you. धन्यवाद. Until next time. Thank you. Namaste. Thank you.